Voice. Yes, sir. Yes, sir. Okay, there was some problem with the internet connection here, so I gone offline. So let us start again. So we were discussing the key learnings of the previous lecture. So we have defined, we have seen how to define an FA. We have seen the two representations, the transition table representation and then transition diagram representation. So it was the representation in the form of a table and it was the representation in the form of a diagram. So it is a pictorial representation, and we have seen that analysis in the form of transition table and transition diagram are quite easier, and best representation is transition diagram, because through the picture we can see all the components of the FA, and our analysis becomes very easy because all the moving parts we are able to see. Is it? Then we have discussed certain simple examples of FA. We have discussed FA for A star and A plus B star. So when our sigma was only symbol A, then we have discussed how to form what will be the FA for A star. Okay, so we have seen that there will be multiple FAs possible for a given language. Okay, so certain basic concepts during this discussion we have evolved. These basic concepts I have summarized here. So for that, every input string over the sigma follows a unique path over the FA. So when we were discussing the transition diagram representation, we have seen that if we are running a input string over the FA, it is following a particular path. So so every input string will follow a different unique path over the FA. Okay, this is a property of the finite automaton. Then the second concept is that for accepting null string, if we want to accept null string, the empty string, then start state must be the final state. Start state must be the final state. अगर start state हमारी final state है, केवल तभी हम null string को accept कर सकते हैं. अगर हमारी start state final state नहीं है, we will not be able to accept null string. Okay. Then the second concept is for accepting all words over the sigma. अगर मुझे सारे के सारे वर्ड्स जो है रिकॉग्नाइज करने, एक्सेप्ट करने, मीन्स I want to accept everything. I don't want to reject anything. I want to accept everything. Then all states in FA must be the final states. All states in the FA must be the final states. यानी कि जितनी भी स्टेट्स होंगी वो सारी फाइनल स्टेट होंगी. जब हमने ए स्टार के लिए देखे थे, सिंगल स्टेट वाला FA देखा था, तो दैट वाज द ओनली स्टेट एंड दैट वाज द फाइनल स्टेट एज वेल. जब हमने दो स्टेट वाला FA देखा था इसके लिए, तो उसमें हमारी दोनों स्टेट फाइनल स्टेट थी, because if all these states are final states, no matter where your input string will lead you, ultimately you will be in some state which is the final one. Okay, so you will always rest in the final state, so everything will get accepted, nothing will be rejected. Similarly, for a given language, FA may not be unique. So we have seen that for A star we have made an FA of single state, then we have made the FA which was consisting of two states for the same language, and similarly we have seen the FA which we have made from 3 states, 4 states, and so on. Okay, so for corresponding to a given language, the FA is not unique. You may design multiple different FAs, and if your design concept is correct, all those FAs may be correct. So these were the basic concepts and things which we have discussed on the last lecture. Now we will be moving forward to our today's agenda. We will continue with this simple examples and certain more concepts. Then we will move to the design of FAs. I will be giving you certain tips for designing, and then we will see certain examples of FA. We will design those FAs using the tips we have learned. Okay. So this is today's agenda. Let us start with the today. So this is the slide where we have left. So we were discussing for A star, single state, double state, triple state, and so on. And then similarly, we were discussing for A plus B asterisk, and these are the certain concepts which we have discussed just now. Okay. So now move to the next example. Here you can see that our language L is equal to 5. Means we want to accept nothing. Okay, so FA corresponding to the language which accepts nothing, means everything should be rejected, means whatsoever word you will be giving to this FA, that is going to be rejected, means nothing is going to be accepted. Okay,
So how we can make an FA corresponding to it? I will request you that all of you should sit with your pen and copies ready, and whenever we are discussing certain such things, then you should try to make FA. So अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि we have to design an FA which accepts nothing, means everything should be rejected. Okay, so how we can design such an FA? So you design an FA at your end, then I will be designing it, then you can compare your design. Okay, so I'm making a design. This is a start state. Okay, this is a start state, and before this I am assuming that my sigma is A comma B. This is my sigma, because whenever you are designing an FA, you should know what is the input alphabet, because without the input alphabet you will not be able to define some language, because languages are defined over the alphabet. Okay, so this is the start state. Okay, now I have to design the transitions for A and B. Okay, so I say that on A I move to this itself, and on B as well I move to this itself. So it is a complete FA or not? It is a complete FA, and it will accept anything or it will reject everything. Just look at this, will be the correct FA for this or not? ये तो accept कर रहा है. Accept कैसे कर रहा है? एप्सिलॉन बताइए, एप्सिलॉन इस पे एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा? जी नहीं होगा सर, नहीं होगा एप्सिलॉन. रिजेक्ट होगा सर. एक्सेप्ट नहीं, हाँ, क्योंकि ये स्टार्ट स्टेट तो है मगर फाइनल स्टेट नहीं है. इज इट? सो एप्सिलॉन पे हम इसी स्टेट पे रहेंगे, एंड दिस इज ए नॉन फाइनल स्टेट, सो माय एप्सिलॉन विल गेट रिजेक्टेड. ओके, नाउ सिंपल, द नेक्स्ट लेटर, सपोज सिंगल ए. So this A will again bring me back to the same state. Okay, इसी स्टेट पर मेरे को वापस लेकर के आएगा, एंड दिस स्टेट इज ए नॉन फाइनल स्टेट. तो मैं कहाँ रेस्ट करूंगा? इसी स्टेट में रेस्ट करूंगा. इट इज ए नॉन फाइनल स्टेट, बिकॉज द ओनली स्टेट प्रेजेंट इन द FA इज ए नॉन फाइनल स्टेट. सो व्हाटसएवर स्ट्रिंग यू रन ओवर इट, वो सारे के सारे स्ट्रिंग कहाँ रेस्ट करेंगे? इसी स्टेट में रेस्ट करेंगे. ओके, सो दैट्स वाई. और ये स्टेट क्या है? मेरी नॉन फाइनल स्टेट है. तो यानी कि मेरा कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगा, सारे के सारे स्ट्रिंग क्या होंगे? रिजेक्ट हो जाएंगे. इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर सर. Similarly, Yes, if sir. I make another FA, something like this, having two states and this one, A comma B, it will also work for this language or not? Just check. Yes, sir. Epsilon, So, because start state is not the final state, so epsilon will get rejected. It will not be accepted. Okay, and all other words will lead you to this second state. Single A will lead you here, so you will ultimately rest here. Okay, and this is a non-final state. देखिए प्लस नहीं लगा हुआ यहाँ, इसका मतलब क्या है? It is a non-final state, so it will be rejected. Single B will also lead you here, and you and that string will be rejected. उसके बाद जितने भी A और B या कुछ भी आएगा, that will keep you in this second state, and this second state is a non-final state. So ultimately you are resting in a non-final state, so your string is going to be rejected. Similarly, you can make multiple FAs like this, having the 3 states, 4 states, and so on, and all those FAs will work similarly. They will not accept anything. Now, why it is not accepting anything? It is not accepting anything because all the states in this FA are non-final state. यहाँ पे एक state है, वही non-final state है. यहाँ पे 2 स्टेट हैं, वही क्या है? नॉन फाइनल स्टेट. सपोज आई मेक थर्ड FA on the similar lines, AB, and then I say AB, and then I say AB. Okay, so it will also work. Or any other kind of design I make something like this, minus A, B, on B I go to the next one, on B I remain here, and on A, suppose I move here. Okay, so this is also an FA, is it or not? This last one, fourth one, it is also an FA. देखिए पहली स्टेट का A पर ट्रांजिशन है, B पर भी ट्रांजिशन है, दूसरी स्टेट का B पर भी ट्रांजिशन है, A पर भी ट्रांजिशन है. So means it is a complete FA. Okay, and this FA is also working for the same language. Okay,
whatsoever string you will give to this language, वो चाहे इस स्टेट पे जाके खत्म हो, चाहे इस स्टेट पे जाके खत्म हो, चाहे पहली स्टेट पे खत्म हो या दूसरी स्टेट पे खत्म हो, दोनों ही स्टेट क्या है, नॉन फाइनल स्टेट. सो अल्टीमेटली योर स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड. सो ऑल दी स्ट्रिंग्स व्हिच यू विल बी गिविंग टू दिस FA or this FA or any of these two FAs is going to be rejected. So these all are the FAs which rejects everything. Okay, is it clear or not? And why they reject everything? Because there is no final state present. Okay, so why they are rejecting it? No final state is present. Is it? यानी कि अगर सब कुछ रिजेक्ट करना है तो there should be no final state. Is it okay? Clear or not? Yes. सर विदाउट फाइनल स्टेट के हम कोई फाइनाइट मशीन कैसे बना सकते हैं जब उसका कोई अंत ही नहीं होगा तो? You just go to the definition of the FA which we have discussed in the starting. Okay, what the definition says, the first point, there should be a finite non-empty set of states. Okay, out of which one is designated as the start state and some of them are designated as the final state. एंड सम के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ था नन, मे बी नन, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी, बिकॉज वी से सम. अब आप अगर इसको अपने 5 टपल के फॉर्मेट में देखें तो आपका 5 टपल क्या है, इट इज ये 5 टपल इज दिस इज क्यू सिग्मा डेल्टा Q0 and F. Okay, so Q is your finite non-empty set of states, is it? Now this Q0 is what? It is one of the members of this Q, okay, which is designated as the start state. Is it? So यानी कि Q0 तो एक होना ही चाहिए, यानी कि start state के बगैर FA नहीं हो सकता. There must be one state which is designated as the start state. Now F is what? F is a subset of capital Q. अब subset है अगर, तो यानी कि Q में जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स लेकर के इसको बनाया, और उस कुछ में के 0 एलिमेंट्स हो सकते हैं. Empty set will be a subset of Q or not? Just tell me, Aman. Yes, sir. Is it? Now I think it is clear. So because F is the set of final states, so there may be some states, means more than one state is also possible, which we designate as the final state. But it is also possible that we do not designate any state as the final state. Is it okay? सर ये तो ठीक है, ये तो मुझे पता था, लेकिन एक क्वेश्चन होता है ना कि अगर कोई मशीन शुरुआत कहीं से कर रही है तो वो उसका सर अगर वो फाइनाइट है तो उसका अंत भी तो होना चाहिए. इसमें आप अगर मतलब सर लास्ट स्टेट नहीं बता रहे तो इसका अंत तो होगा ही नहीं, ये तो बस एक ही में मूव करता रह जाएगा अगर इसको देखिए, इनपुट मिल जाए तो. दिस इज द एग्जांपल where we require that there should be no final state. अगर मुझे सब कुछ रिजेक्ट करना है, suppose I want to reject everything, whatsoever comes to me, I want to reject it. So certainly कोई final state नहीं होनी चाहिए, and I have made these machines. Is it or not? So this is the example. This is the use. आप कह रहे हो क्या use होना चाहिए in these kind of situations where I want to reject everything. I will be using such a machine where there is no final state. Is it okay or not? Yes sir, ठीक है. Is it? So यहाँ यहीं पे इसका इस्तेमाल है कि हमें जहाँ कहीं भी ऐसी situations होंगी कि we want to reject everything. So at that point of time, this concept will be used कि there should be no final state. Okay, चलिए एक काम करते हैं, मैं एक और मशीन बनाता हूँ. Something like this. This is the start state. On A, B, I am going to this another state, and suppose on A and B, I am again coming back to this. Okay, A, B. Is it? Just and there is one more state. On A, I am moving to the another state, which is the final state. On B, I am remaining to itself. And on A, B. Is it? So, suppose I say this is the state X, this is the state Y, this is the state Z, and this is the state, say, okay, मैंने कुछ पहले ज़्यादा ले लिया. This is the state U. Okay. So these are the names of the state. So this is an FA or not? My first question is, this is an FA or not? Someone? सर पहला वाला तो हो सकता है, लेकिन दूसरा वाले में सर स्टार्टिंग स्टेट नहीं है. These are not two different FAs.
These are not two different FAs. This is this whole one is a single FA. Is it or not? Just tell me, it is an FA or not? Someone from the class. No, sir, it is not an FA. It is not an FA. Why it is not an FA? Because all the states are not linked together. FA की डेफिनेशन में ये कहाँ लिखा है कि सारी स्टेट्स लिंक्ड होनी चाहिए? सर ट्रांजिशंस तो कंप्लीट होने चाहिए ना? ट्रांजिशंस कंप्लीट नहीं है क्या? चेक करिए, देखिए एक्स स्टेट ए पर भी ट्रांजिशन है, बी पर भी ट्रांजिशन है, इज इट? वाई स्टेट ए पर भी ट्रांजिशन है, बी पर भी ट्रांजिशन है, इज इट? जेड स्टेट ए पे भी ट्रांजिशन है, बी पर भी ट्रांजिशन है, यू स्टेट ए पर भी ट्रांजिशन है, बी पर भी ट्रांजिशन है। यानी हर स्टेट से जितने मेरे इनपुट अल्फाबेट हैं उतने ही ट्रांजिशंस बाहर जा रहे हैं, इज इट? इज इट और नॉट? तो ट्रांजिशंस कहाँ इनकम्प्लीट है? यस सर, ट्रांजिशन कंप्लीट है ना? देखिए स्टार्ट स्टेट भी हो गई, फाइनल स्टेट भी हो गई। यहाँ जैसे अमन का यहाँ डाउट था कि भाई बिना फाइनल स्टेट के कैसे, चलिए मैंने यहाँ फाइनल स्टेट भी बना दी, इज इट? ओके, तो स्टार्ट स्टेट भी है, फाइनल स्टेट भी है, सारे के सारे ट्रांजिशंस भी कंप्लीट हैं, इज इट? सो दिस इज एन एफए और नॉट? अब भी डाउट है? सेकंड सर, इसमें स्टार्ट स्टेट नहीं है सर। Start state, this X state is the start state. I have put a minus here. Just look here. I have put a minus here, so this is the start state. I have put a plus here. FA है ये। Is it? So this is an FA. Yes. मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि अच्छा बाकी लोगों के साथ डिस्कशन नहीं हुआ, ए सेक्शन के साथ तो डिस्कशन हुआ था जब पहले लेक्चर में, कि दिस इज अ सब्जेक्ट वेयर वी विल गो बाय द रूल्स ओनली। इसमें दिमाग जो है नहीं लगाना, गैस वर्क नहीं करना है हमें कहीं पे। जो रूल कहता है, रूल के अकॉर्डिंग जो चीज आ रही है, अब रूल के अकॉर्डिंग इट इज एन एफए, सो दैट्स व्हाई इट इज एन एफए, नो मैटर वेदर इट इज कनेक्टेड और नॉट। ओके, नाउ क्वेश्चन इज, इफ इट इज एन एफए, व्हाट लैंग्वेज दिस एफए इज रिप्रेजेंटिंग? essentially the same one or not? L is equal to 5, it will reject everything, is it or not? आप इस एफए को कोई भी स्ट्रिंग दीजिए, यहां से स्टार्ट करेगा स्टार्ट स्टेट से, ए देंगे तो वाई पे आएगा, बी देंगे तो भी वाई पे आएगा, फिर ए देंगे तो एक्स पे जाएगा, या बी देंगे तो वाई पे। मींस फर्स्ट लेटर विल लीड यू टू द स्टेट वाई, देन सेकंड लेटर विल लीड यू टू द स्टेट एक्स, देन थर्ड लेटर विल अगेन लीड यू टू द स्टेट वाई, देन फोर्थ लेटर विल अगेन लीड यू टू द स्टेट एक्स, एंड सो ऑन। यानी कि जितने भी, अगर आपके वर्ड की लेंथ ऑड है तो आप कहां पे पहुंचेंगे? वाई पे। अगर इवन है तो कहां पे रहेंगे? एक्स पे। बट दोनों ही स्टेट क्या है मेरी? नॉन फाइनल स्टेट्स हैं, इज इट? सो यानी कि जितने भी स्ट्रिंग मेरे इस पे रन कराऊंगा वो सारे के सारे क्या होंगे? रिजेक्ट होंगे। सो एंड दिस पोर्शन ऑफ द एफए is the disconnected part of this FA. Okay, it is a part of FA, but it is the disconnected one. From the start state, I am not able to reach this part of the FA. Is it or not? Okay, and my final state exists in this part. My final state exists in this part. So though in this FA, final state is also present, but it is not reachable from the start state. Okay, so that's why it will reject everything. And the language corresponding to this FA is what? 5. Empty language. It will reject everything. It will not accept anything. तो अब इन दो चीजों से हमें क्या, पहले जो 4-5 मैंने बनाया ऊपर की तरफ, इससे मुझे क्या पता चला कि अगर मुझे हर चीज रिजेक्ट करनी है, everything I want to reject, okay, then there should be no final state. Number 1. Number 2, even if there is final state, that final state should not be reachable from the start state. और यहाँ पे फाइनल स्टेट रीचेबल नहीं है स्टार्ट स्टेट से। क्यों? क्योंकि ये मेरा डिसकनेक्टेड ग्राफ है और फाइनल स्टेट मेरे डिसकनेक्टेड पोर्शन में जो है एग्जिस्ट करती है। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? Yes sir, yes sir. Okay, now yes sir. I make one more FA. This is the start state, A comma B. This is the state, then A comma B, and then this is the state, this is the final state, and this is A comma B. It is a connected graph or not? It is a connected graph. Apparently it is connected, but even if it is connected, your final state is not reachable from the start state. यहाँ तो देखिए डिसकनेक्शन मेरे को दिखाई दे रहा था, यहाँ पे बीच में गैप था। ओके, यहाँ मुझे कोई गैप दिखाई नहीं दे रहा, but even then if you carefully look at, you will never reach
टू द फाइनल स्टेट फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट। अगर आप स्टार्ट स्टेट से शुरू करते हैं, पहला लेटर आपको कहाँ ले जाएगा? दूसरी स्टेट पे, और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो सारे के सारे लेटर आपको वहीं पे रखेंगे। यू विल नेवर रीच टू दिस फाइनल स्टेट। क्यों? क्योंकि इस पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस पे से फाइनल स्टेट पे से आप इस सेकंड स्टेट पर आ तो रहे हैं, मगर इस फाइनल स्टेट पे पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। सो बिकॉज in this also, even if the graph is seems to be connected one, but final state is not reachable from the start state, so that's why this is also representing the same language. L is equal to 5, is it? So concept की बात जो है वो यही है कि या तो मेरी कोई फाइनल स्टेट है ही नहीं, और अगर फाइनल स्टेट है तो वो स्टार्ट स्टेट से रीचेबल नहीं है, चाहे वो डिस्कनेक्टेड ग्राफ की वजह से रीचेबल ना हो, या स्टार्ट स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने का कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी रीजन हो। अगर फाइनल स्टेट स्टार्ट स्टेट से रीचेबल नहीं है, देन ऑलवेज द लैंग्वेज विल बी इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि आप किसी भी स्टेट पे जाकर के स्टे करेंगे, बट दैट विल नॉट बी ए फाइनल स्टेट, क्योंकि स्टार्ट स्टेट से शुरू करके आप फाइनल स्टेट पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। सो दैट्स वाई एवरीथिंग, एवरी स्ट्रिंग विल गेट रिजेक्टेड। तो अगर कभी भी आपको कोई ऐसी लैंग्वेज डिजाइन करनी है L is equal to 5 जिसमें कि everything has to be rejected, then either there should be no final state or final state should not be reachable from the start state. So I am writing the second one, that final state should not be, not should, it is must not be reachable from start state. Is it clear? So this concept is clear or not? Yes, sir. Okay. Now we move to the next one. Again, we are taking that our input alphabet sigma is AB. Okay, there are two alphabets, A and B. We have to design an FA that accepts everything except null string. यानी कि everything, हर चीज accept होनी चाहिए, केवल null string accept नहीं होना चाहिए. Can you make this FA? Just draw this FA on your copies and compare with what I am drawing. Is it? Will this work or not? Will this work or not? Yes, sir. Yes, sir. The final state है। आप देखिए ये कैसे वर्क करेगा। देखिए मुझे नल स्ट्रिंग नहीं एक्सेप्ट कराना था। अगर मुझे नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कराना है तो मेरा सबसे बड़ी चीज स्टार्ट स्टेट फाइनल स्टेट नहीं होनी चाहिए। तो मैंने स्टार्ट स्टेट बनाई, मैंने यहाँ स्टार्ट स्टेट बनाई, और इट कैन नॉट बी ए फाइनल स्टेट, तो मेरा नल स्ट्रिंग तो रिजेक्ट हो गया। अब इसके बाद नल स्ट्रिंग के अलावा और भी स्ट्रिंग्स तो हैं। सपोज मेरे पास सिंगल ए आता है, सिंगल ए आता है तो ऑब्वियस सी बात है सेल्फ लूप नहीं बना सकता, क्योंकि अगर सेल्फ लूप बनाऊंगा तो दैट ए विल ब्रिंग मी बैक टू दिस स्टेट। ओके, और उसके बाद ये नॉन फाइनल स्टेट, अगर वहीं पे मेरा स्ट्रिंग फिनिश हुआ तो मैं किस पे स्टे करूंगा? इसी स्टेट पे स्टे करूंगा, विच इज अ नॉन फाइनल स्टेट, तो मेरा वो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगा। जबकि मुझे नल के अलावा जितने भी स्ट्रिंग आ रहे हैं उन सबको क्या कराना है? एक्सेप्ट कराना है। ओके, सो सर्टेनली मेरा जो ए है वो कहां जाना चाहिए? इस स्टेट से अवे जाना चाहिए, इस स्टेट से दूर जाना चाहिए। सो मैं उस स्टेट से अवे कर देता हूं इसको ए। सो इट विल लीड मी टू सम अदर स्टेट। ओके, एंड ऑब्वियसली बात है चूंकि मुझे ये ए एक्सेप्ट कराना है तो दिस स्टेट शुड बी ए फाइनल स्टेट। इज इट और नॉट? क्लियर है? एंड देन Yes, sir. सिमिलरली Yes, sir. इस स्टार्ट स्टेट से अगर मुझे ए ना मिला, बी मिला तो भी मुझे एक्सेप्ट कराना है। तो यानी कि इस स्टेट से तो दूर जाना पड़ेगा, तो दूर जाना पड़ेगा और एक्सेप्ट होना चाहिए। तो ये मेरे पास दूसरी स्टेट अवेलेबल है जो इससे अवे भी है और फाइनल स्टेट भी है। तो मैं कॉमा लगा के बी ही लिख सकता हूँ, या आप दूसरा ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दीजिए। ओके, अब इस स्टेट के ट्रांजिशन आ गए, क्योंकि मुझे स्टेट के सारे ट्रांजिशन कंप्लीट भी करने। इस स्टेट के तो दोनों ट्रांजिशन कंप्लीट हो गए, पहली स्टेट के, दूसरी स्टेट के जो कि फाइनल स्टेट है इसके ट्रांजिशन मुझे ड्रॉ करना है। अब इससे अगर ए मिले तो कहाँ जाना चाहिए? अब देखिए मुझे सब कुछ एक्सेप्ट कराना है,
तो अब एक बार नल, जब मैं इस सेकंड स्टेट पे आ गया, इसका ना नल तो खत्म हो गया, नल तो है ही नहीं। अब तो जो कुछ भी है वो मुझे एक्सेप्ट कराना है। जब जो कुछ भी है वो मुझे एक्सेप्ट कराना है तो क्या है, A, B means I should stay in this state because this is the final state. So मेरा जो कुछ भी आएगा वो मुझे इसी स्टेट पर रखेगा और अल्टीमेटली यही मेरी रेस्टिंग स्टेट बन जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मेरा स्ट्रिंग क्या होगा, मेरा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। इज इट? So this is the methodology by which I have made. You can see that both are the similar designs. So that's why I have made like this. Is it okay or not? Clear है? Any Yes, sir. doubt? Yes, sir. यस सर। Okay, okay. Yes, sir. No, sir, कोई डाउट नहीं। Now we have seen certain simple examples. We have learned certain basic concepts related to the FAs. अभी तक मैंने जो कुछ भी FAs थे उनको सीधे ड्रॉ करके बता दिया और उनको ड्रॉ जैसा भी डिजाइन बनाया उनका, उसके अकॉर्डिंग हमने उनको एनालाइज करके कुछ जो है कॉन्सेप्ट्स निकाले जो कि हमने डिस्कस किया आपके साथ। ओके, अभी तक हमने दो चीजें डिस्कस की हैं, एक तो फाइनाइट ऑटोमेटन्स और दूसरा क्या किया है, रेगुलर एक्सप्रेशंस। देयर आर फाइनाइट ऑटोमेटन्स एंड देयर आर रेगुलर एक्सप्रेशंस। ये दो तरह के टूल्स हम डिस्कस कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट दी लैंग्वेजेस। ओके, सो बोथ FAs and regular expressions represent the same class of languages known as regular languages. At the time of discussion of the regular expression also I have told you that regular expressions represent a certain class of languages that is known as the regular languages. Now FA is also representing the same class of language, that is the regular languages. Means both FAs and regular expressions represent the same class of लैंग्वेजेस। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये दोनों ही सेम क्लास ऑफ लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें इन दो टूल्स की क्या आवश्यकता है, दोनों में से किसी एक से काम क्यों नहीं चल गया? इसका कारण ये है कि दोनों टूल्स डिफरेंट टाइप के हैं। FAs को जो हम कहते हैं कि दिस इज ए टेस्टिंग टाइप ऑफ टूल, while regular expression are known as the generating kind of tools. Okay, why we are calling these like this? So whenever a language is defined by a regular expression, okay, whenever we define a language by regular expression, RE से represent कर रहे हैं, it is easy to produce some arbitrary strings in the language by making a set of choices for plus operator and star operator. हमारी regular expression क्या है? There are certain alphabet symbols. Then among those alphabet symbols, somewhere we are putting plus, somewhere we are putting stars. So these two operators we are working on, plus and star. And these plus and star provides us the choice. Plus में क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे और जो राइट हैंड साइड पे दोनों में से किसी एक को हम चूज कर सकते हैं। इज इट? सिमिलरली स्टार के लिए हम क्या है, डिफरेंट वैल्यूज चूज कर सकते हैं, 0 1 2 3 4। सो एनी पावर वी कैन चूज फॉर दी स्टार and as per our choice we can generate different strings. Okay, तो कैसे, जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि my language is A plus B asterisk, something like this. Okay, तो मेरा क्या हुआ कि मेरा जो पहला सिंबल है वो A भी हो सकता है या B भी हो सकता है। सो आई कैन जनरेट, सपोज एक बार मैंने A चूज किया दोनों में से, तो आई विल जनरेट A। अब B स्टार, अब स्टार की जगह सपोज मैंने चूज किया 3, so 3 B's will come here, so I will be able to generate a word A+B. Similarly अगर सपोज पहली बार मैंने क्या चूज किया, B चूज किया दोनों इस प्लस वाले में से, इस स्टार की जगह सपोज मैंने 2 चूज, सपोज 1 चूज कर लिया। ओके, सो 1B will come, so I will be able to generate BB. So means for different choices of these plus and star, I will be able to generate different words very easily. Okay, but it may be harder to recognize whether a given string is or is not in the language. अब सपोज यही रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने दे रखी है और मैं आप या और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन ले लेते हैं, सपोज A स्टार B A स्टार, समथिंग लाइक दिस। ओके, ये मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन है सपोज। अब मैं कहूँ कि मेरा एक वर्ड B A B is part of this language or not, this belongs to this language or not. So can you answer quickly? कर सकते हैं, चेक तो करके बता सकते हैं, but it is difficult, it is a bit difficult. आपको पहले देखना पड़ेगा कि BAB इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट करने के लिए पहला वाला A, so for this star you must take 0, then this B you can take, so ये B आपके पास आ गया। उसके बाद ये A स्टार आप जो है इसको 0 लीजिए,
ठीक है, 0 लिया और इस a प्लस बी में से आपने क्या लिया, a को चूज किया, देन दिस a विल कम एंड फॉर दिस b स्टार you will get this b. Okay, so you can generate, yes, this is a word in this language, but इसको check करने के लिए मुझे थोड़ा सा difficulty हुई. So that's why I am saying it may be harder to recognize whether a given string is inside the language or it is outside the language. So testing a particular word, whether it is a part of the language or not, it is difficult in case of regular expression. While if you want to generate certain arbitrary words, it is very easy. Just you have to make certain choices for the given stars and plus. उनके जो भी combination आप लेंगे उसी के according you will be able to generate some word in the language. Is it clear or not? Class? Yes, sir. While the Yes, sir. situation with the Yes, FAs sir. is just opposite. FAs की जो पोजीशन सिचुएशन है वो इसके बिल्कुल उल्टी है, बिल्कुल अपोजिट है. अगर मेरे पास कोई FA है तो अगर मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग दिया जाए तो मुझे अगर चेक करना है कि वो स्ट्रिंग उस जो FA से डिफाइन होने वाली लैंग्वेज है उसका पार्ट है कि नहीं है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रन दैट स्ट्रिंग ओवर द FA एंड आई विल सी दैट पाथ डिटरमाइंस, जो पाथ ये डिटरमाइन करता है वो एक फाइनल स्टेट पे एंड होता है या नॉन फाइनल स्टेट पे एंड होता है. इज इट? तो अगर वो फाइनल स्टेट पे एंड होता है तो दैट इज द पार्ट ऑफ द लैंग्वेज. अगर वो नॉन फाइनल स्टेट पे एंड होता है तो that is not the part of the language of FA. So testing a particular string, whether it is a part of the language defined by the FA or not, it is very easy. Okay. On the other hand, अगर मेरे को FA दिया हुआ है और मुझे कहा जाए कि इस FA पे एक्सेप्ट होने वाले कुछ words लिख करके बताओ, is it? It is very difficult. Suppose I am writing this B, this सपोज लाइक दिस इज एन FA. अब मैं इससे कहूँ कि अब मैं आपसे कहता हूँ कि इस पे एक्सेप्ट होने वाले कुछ वर्ड्स बताइए मुझे. सो एक आध वर्ड हो सकता है आप निकाल लें, बट इससे ज्यादा वर्ड निकालने इट इज डिफिकल्ट. ओके, तो आपको इस, जबकि अगर कोई वर्ड आपको दिया हुआ, सपोज आपको दिया हुआ एक वर्ड ABB, whether this word will be the part of the language or not, you will just run this word over it. A, you will remain here. B, you will move here. Then the third B will lead you here, and this is a final state. So ABB will be the part of the language represented by this particular FA. So testing is easy. Testing is easy. But generating certain words, जैसे कि हमने यहाँ regular expression के केस में हम generate कर रहे थे words, उस तरह से इससे words generate करना it is difficult. So कहने का मतलब ये है कि FAs हमारे क्या है, टेस्टिंग टूल्स हैं, और REs रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या हैं, वो जनरेटिंग टूल्स हैं. सो दैट्स व्हाई FAs एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस both are complementary to each other. Both are complementary to each other. And also one claim I am making at this point of time, that is the FAs and regular expressions are equivalent. We will see later on that how we can convert regular expressions to the FAs and FAs to the regular expressions. So that we will discuss later on. But that result I am telling you right now, that corresponding to a given FA, there always exists a regular expression. अगर मेरे पास कोई FA है, suppose ये मेरा FA है, तो इसके corresponding कोई ना कोई regular expression जरूर होगी. या ये मेरी अगर regular expression है तो इसके corresponding कोई ना कोई FA मेरा जरूर exist कर रहा होगा. Is it? So meaning thereby कि अगर मेरे पास कोई language है तो उस language को represent करने के लिए I can use any of these two tools, FAs and regular expression. And if I am able to make an FA corresponding to a language, then certainly there will exist a regular expression for that language also. And conversely, if I am able to design a regular expression corresponding to a given language, I will also be able to design the corresponding FA. Means corresponding to each FA, there exists a regular expression, and corresponding to every regular expression, there exists an FA. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. We move to the design of FAs. Okay. The very first example which I am taking here is FA that accepts all words of
even length over the sigma. All words of even length over the sigma, and sigma is what? Sigma is a comma b. Is it? मेरे दो अल्फाबेट हैं a और b, इस पे मुझे इवन लेंथ के सारे वर्ड्स जो हैं वो एक्सेप्ट करना है. सो व्हाट विल बी द l? व्हाट विल बी माई l? लैंग्वेज क्या होगी? लैंग्वेज में कौन कौन से वर्ड्स होंगे बताइए मुझे. इवन लेंथ के वर्ड है, एप्सिलॉन होगा कि नहीं होगा? एप्सिलॉन होगा? सर होगा. नो सर. होगा सर. क्यों नहीं होगा? एप्सिलॉन मींस नल वर्ड, एम्प्टी वर्ड. एम्प्टी वर्ड की लेंथ क्या होती है? 0. इज इट और नॉट? एम्प्टी वर्ड की लेंथ क्या होगी? उसमें कोई सिंबल है ही नहीं. लेंथ क्या है किसी भी स्ट्रिंग की? उसमें अल्फाबेट सिंबल्स के लिए जितनी पोजीशंस अवेलेबल हैं. सो एम्प्टी स्ट्रिंग इज ए स्ट्रिंग जहां पे कोई पोजीशन अवेलेबल नहीं है, 0 पोजीशंस अवेलेबल हैं. ओके, सो इसकी लेंथ क्या हो गई? 0. और 0 को हम क्या कंसीडर करते हैं? इवन कंसीडर करते हैं. तो दैट्स व्हाई एप्सिलॉन और द नल स्ट्रिंग विल बी द पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज. नाउ अब इस पे और कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं? सिंगल ए बन सकता है, सिंगल बी बन सकता है, बट दोनों की लेंथ क्या है? 1, विच इज ऑड. So A will not be the part of the language. B will not be the part of the language. उसके बाद सेकंड लेंथ के जो वर्ड्स हैं A, B, all these 4 words. So इनकी लेंथ क्या है? इवन है. तो ये सारे वर्ड्स इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे. So AB, BA and BB. Is it? So these words will be the part of the language. इसके बाद 3 लेंथ्स के जितने वर्ड हैं, ट्रिपल ए बी एंड सो ऑन, जितने भी 3 लेंथ वाले वो इसके पार्ट नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि उसमें लेंथ क्या हो गई? ऑड हो गई. उसके 4 लेंथ वाले जितने वर्ड होंगे वो सारे के सारे इसका पार्ट होंगे एंड सो ऑन. इस तरह से हमारी ये लैंग्वेज बनती है. सो दिस इज द एल. सो whenever you are designing an FA, first of all you must understand what words will be the part of the language. Is it clear? So language L is clear to us now? Yes, sir. Yes. Okay. Now, before going to the design, I am trying to make a regular expression corresponding to it. Can anybody tell me what will be the regular expression corresponding to it? All the words of even length. अगर मुझे 2 लेंथ वाले वर्ड लिखने हो ओवर दिस अल्फाबेट तो क्या लिखूंगा? Recall what we have discussed in the regular expressions. अगर मुझे 2 लेंथ, yes, very correct. I will be writing A plus B and A plus B. Is it or not? Clear है ना? मेरे पास 2 लेंथ है, यानी कि 2 पोजीशंस हैं. तो पहली पोजीशन पे क्या आ सकता है? या तो A आ सकता है या B आ सकता है. सिमिलरली दूसरी पोजीशन पे क्या आ सकता है? या तो A आ सकता है या B आ सकता है. Is it? So A plus B. So इससे मैं 2 लेंथ वाले सारे के सारे वर्ड्स जनरेट कर सकता हूं. अब लेकिन मुझे यहाँ 2 लेंथ वाले तो चाहिए नहीं, मुझे तो यहाँ इवन लेंथ वाले चाहिए. इवन लेंथ का मतलब 0 लेंथ भी हो, 2 तो हो ही, 2 के बाद 4 भी हो, 6 भी हो, 8 भी हो एंड सो ऑन. यानी कि 2 लेंथ वाले के साथ अगर मैं 2 लेंथ वाला एक और वर्ड कॉन्केटिनेट कर दूं तो 4 लेंथ वाले वर्ड मिल जाएंगे कि नहीं? इज इट? उसके साथ एक और 2 लेंथ वाला वर्ड कॉन्केटिनेट कर दूं तो मुझे 6 लेंथ वाले सारे वर्ड मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे? तो मैं क्या करता हूं, ये सिस्टम मैं कैसे बना सकता हूं? आई पुट ए ब्रैकेट हियर एंड आई पुट ए स्टार हियर. इज इट और नॉट? जस्ट लुक वेदर दिस एक्सप्रेशन विल वर्क और नॉट. अगर इस स्टार की जगह मैं 0 ले लेता हूं, so there will be no position, so epsilon will be generated. अगर मैं इस स्टार की जगह 1 ले लेता हूं, अगर 1 लेता हूं तो a प्लस बी आएगा, यानी कि 2 लेंथ के सारे वर्ड जनरेट हो जाएंगे. अगर इस स्टार की जगह मैं 2 ले लेता हूं तो यानी कि a प्लस बी ये 2 बार आएगा. सो a प्लस बी एक बार आया, फिर दूसरी बार a प्लस बी यानी कि कितनी बार a प्लस बी आया? 4 बार a प्लस बी आ गया. और हर बार मैं क्या चूज कर सकता हूं? या तो A या B. तो 4 लेंथ वाला कोई भी वर्ड जनरेट कर सकता हूं इससे कि नहीं? इज इट? यानी कि जब मैं स्टार की जगह 2 ले रहा हूं तो मेरा क्या एक्सप्रेशन जनरेट होगी? इट विल बी A प्लस बी. एक बार आ गया ये, और चूंकि ये 2 बार आना है तो A प्लस बी. इज इट? तो 4 बार. तो इससे मैं 4 लेंथ वाले कोई भी वर्ड जनरेट कर सकता हूं. इसी तरह से अगर इस स्टार की जगह मैं 3 ले लूं तो I will be able to generate A plus B one time, then A plus B
2 times, then a plus b or a plus b 3 times. Through this expression I can generate any word of length 6 and so on. इसी तरह से स्टार की different values के लिए I will be able to generate different expressions and corresponding उसी length के जो words हैं, जितने भी possible words हैं, those I will be able to generate. Now it is clear how I have computed the regular expression corresponding to this language. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now our purpose is to make a FA corresponding to it. Okay, machine corresponding to it. Suppose इस तरह का आपने programs काफी किए होंगे programming में. Now this example I am also linking with the efficient programming. Okay, you will be able to understand after this example how much important the discussion or the knowledge of theory of automata is for doing a good level of a good kind of programming. Okay, so suppose अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको किसी भी वर्ड को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, यानी कि इनपुट आपके पास क्या होगा, एक इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है. अगर उसकी लेंथ इवन है तो आप प्रिंट करिए एक्सेप्टेड. अगर उसकी लेंथ ऑड है यानी कि इवन नहीं है तो आप प्रिंट करिए रिजेक्टेड. तो आप इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे? एनी वन ऑफ यू. आपके पास इनपुट क्या है? इनपुट इज ए स्ट्रिंग. ओके, उस स्ट्रिंग की लेंथ अगर इवन है तो आपको क्या प्रिंट करना है? एक्सेप्टेड. उस स्ट्रिंग की लेंथ अगर जो है इवन नहीं है तो आपको प्रिंट क्या करना है? रिजेक्टेड. Is it? So it is essentially the similar kind of system which I want to make here. FA that accepts all words of even length. यानी कि अगर वर्ड की लेंथ इवन होगी तो एक्सेप्ट करेगा, वरना रिजेक्ट करेगा. अब मैं इसी का आपसे एक प्रोग्राम बनाने के लिए कह रहा हूं कि मैं आपको एक इनपुट स्ट्रिंग दे रहा हूं, एक स्ट्रिंग इनपुट में दे रहा हूं. आप उस स्ट्रिंग को रीड करिए और अगर उसकी लेंथ इवन है तो एक्सेप्टेड प्रिंट करिए, वरना रिजेक्टेड प्रिंट करिए. कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ यू विल बी डूइंग इट? Just tell me the algorithm, what steps you will take. If length mod 2 is equal to 0, then print given. Okay. Else, else conditions. अच्छा, any other idea other than this? ये सबका यही आइडिया है. सर या तो वो कर सकते हैं if else लगा के, if strlen string length is equals to जो भी हमें चाहिए even, तो फिर उसके बाद but in any case we need to find the length, is it or not? कहने का मतलब क्या है? देखिए, मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक यहाँ छोटा सा एल्गोरिथम लिखा है. शायद आप डिफरेंट मैनर में इसी एल्गोरिथम को करें. मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एक जो काउंट है, जस्ट 1 मिनट, आई एम इनिशियलाइजिंग ए वेरिएबल नेम्ड काउंट एंड आई एम इनिशियलाइजिंग इट एज 0. ओके, ये काउंट क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे पास कितने लेटर्स हैं मेरे इनपुट स्ट्रिंग में वो काउंट करने के लिए मैंने इस वेरिएबल को यूज किया है. Okay, I will read the input string letter by letter and increase the count after reading each letter. यानी कि हर लेटर को रीड करने के बाद मैं क्या करूंगा, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1. ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं करते, हम सीधे स्ट्रिंग लेंथ वाला फंक्शन यूज कर लेंगे. बट स्ट्रिंग लेंथ वाला फंक्शन भी कैसे इंप्लीमेंट हुआ है? वो ऐसे ही तो इंप्लीमेंट हुआ है कि आप उसमें लेटर बाई लेटर स्ट्रिंग को रीड किया गया होगा, काउंट को काउंट प्लस 1 किया गया होगा. जब इनपुट स्ट्रिंग फिनिश हुआ होगा तो जो भी काउंट की वैल्यू थी दैट हैज बीन रिटर्न्ड एज द लेंथ. ओके, सो चाहे आप स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन यूज करें, चाहे आप नेटिवली बेसिकली जो है इसको अपने आप बना लें, इज इट, बट स्टेप्स आपके यही हैं, इज इट. तो जब आपका स्ट्रिंग फिनिश हुआ, जब आपने स्ट्रिंग को रीड करना फिनिश किया, तो जो कुछ भी काउंट था दैट हैज बिकम द लेंथ, इज इट. उसके बाद आप क्या करते हैं, एक रिमाइंडर काउंट करते हैं, लेंथ %2, यानी कि एक मॉड्यूलर डिवीजन करते हैं जिससे आपको रिमाइंडर मिल जाए, इज इट, कि लेंथ को 2 से डिवाइड किया, अगर ये 2 से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0. अगर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1. सो इफ द रिमाइंडर, देन वी चेक, एक बार रिमाइंडर कैलकुलेट किया फिर हम चेक कर रहे हैं, इफ द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देन स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड. सो आई होप एवरी वन ऑफ यू इज थिंकिंग इन दिस मैनर, इज इट और नॉट? इज इट? Okay. Now if you look carefully at this at the steps which we are taking in this algorithm, हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है अगर स्ट्रिंग की लेंथ इवन है तो उसका जो है वो एक्सेप्ट हो, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो. इसके लिए लेंथ, हमें कहीं लेंथ की आवश्यकता है क्या?
कि लेंथ जैसे लेंथ 2 है, लेंथ 4 है, लेंथ 8 है, मुझे क्या इसकी आवश्यकता, मैं तो केवल ये चाहता हूं जब लेंथ 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 10 हो एंड सो ऑन, सो मेरा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो केवल। लेकिन मैं एग्जैक्टली वो 2 है, 4 है, 8 है या 10 है, क्या इस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हूं? नो, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी। मतलब वो मेरा हो सकता है इंटरमीडिएट मैंने यूज किया है, बट अल्टीमेटली मेरा जो प्रोग्राम मुझे चाहिए था या जो मेरा जो पर्पस था वो लेंथ फाइंड करना नहीं था, मेरा केवल ये फाइंड करना था वेदर लेंथ इज इवन और नॉट। लेंथ एग्जैक्टली क्या है नंबर में ये फाइंड करना मेरा पर्पस नहीं था। मेरा पर्पस केवल क्या था, लेंथ इवन है या नहीं है। सो मीनिंग देयर बाई कि लेंथ इफ आई एम कंप्यूटिंग, सो दिस इज एन एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए मेरे बहुत सारा जो है कंपटीशन लग रहा है। आप देखिए वेरिएबल्स मैंने यूज किए, तो स्पेस आई एम यूजिंग, हर बार रीड करने के बाद मैं काउंट को इंक्रीज कर रहा हूँ, सम कंप्यूटेशन आई एम यूजिंग देयर। उसके बाद फिर लेंथ कंप्यूट करने के बाद आई एम कैलकुलेटिंग द रिमाइंडर, सो आई एम डूइंग ए डिवीजन ऑपरेशन। ओके, so all this computation I am doing and I say that this computation is needless, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है जिसको मैं कर रहा हूं। अब क्वेश्चन ये कि अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? I am giving you a second idea. What I will do, I will initialize a flag and I will initialize this flag as true 1. Okay, I will read the input string letter by letter, जैसे यहाँ letter by letter read कर रहा था वैसे यहाँ भी letter by letter read कर रहा हूँ। And every time I am reading a letter, I am flipping the flag. I am flipping the flag means अगर मेरा flag 1 है तो उसको 0 कर दे रहा हूँ, और अगर flag की वैल्यू 0 है तो उसको क्या कर दे रहा हूँ, 1 कर दे रहा हूँ। Is it? So every time I am reading a letter, I am flipping the flag. When a string is finished, I am checking if my flag is 1, then a string is accepted, else the string is rejected. इसमें कहीं मैंने लेंथ कैलकुलेट की क्या? इसमें मैंने कहीं लेंथ कैलकुलेट की क्या? No, sir. And will this algorithm work or not? Yes, sir. It will work. Yes, sir, work. वर्क करेगा कंपटीशन वाइज। इट इज वेरी सिंपल। आप देखिए यहाँ मैं काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर रहा हूँ, डिवीजन कर रहा हूँ, ये सारे के सारे कॉस्टली ऑपरेशंस। फ्लिपिंग द फ्लैग इज ए बिट ऑपरेशन। ओके, सो दैट इज क्वाइट सिंपलर। तो यानी कि जितने मैंने हर लेटर के लिए एक ऑपरेशन यहाँ भी किया, हर लेटर के लिए एक ऑपरेशन यहाँ भी किया, लेकिन ये जो ऑपरेशन है इट इज वेरी वेरी एफिशिएंट। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि देखिए यहाँ मेरा जो कॉन्सेप्ट था, मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी मेरी लेंथ इवन हो तो एक्सेप्ट होना चाहिए। तो अब जब मैं एक फ्लैग को रख ले रहा हूँ, इनिशियली मेरा क्या है, मैंने जब कुछ भी रीड नहीं किया 0 है मेरी लेंथ। ओके, सो दैट्स व्हाई इनिशियली आई हैव सेट माय फ्लैग एज 1। इनिशियली आई हैव सेट माय फ्लैग एज 1, और जैसे ही मैंने पहला लेटर रीड किया तो मेरी लेंथ क्या हो गई, ऑड हो गई। सो मैंने फ्लिप कर दिया फ्लैग को, फ्लैग मेरा क्या हो गया, 0। पहला सिंबल, पहला लेटर रीड करते मेरा फ्लैग क्या हो गया, 0, क्योंकि लेंथ क्या है, ऑड। इज इट? अब लेंथ एग्जैक्टली क्या है मैंने कहीं नहीं कैलकुलेट किया, मगर मेरा फ्लैग मुझे बता रहा है कि मेरी लेंथ ऑड है, और मेरा इसी से मतलब है कि मेरी लेंथ ऑड है या इवन है। इज इट? उसके जैसे ही मैंने अगला लेटर रीड किया, यानी कि सेकंड लेटर रीड किया, अब मेरा फ्लैग 0 था तो फ्लैग क्या हो गया, वापस 1 हो गया। फ्लैग वापस क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए लेंथ, जो जितना पोर्शन मैंने स्ट्रिंग का अब तक रीड किया वहां तक मेरी लेंथ क्या है, दैट इज इवन। सो दैट्स व्हाई माय फ्लैग इज 1। Okay, so I'm not computing the length. I'm simply checking whether the length of the string read up till now is even or odd, which was my original purpose. And ultimately when my string will be finished, अगर मेरे string की length even होगी तो automatically flag क्या होगा, 1 होगा। अगर string की length odd होगी तो flag क्या होगा, 0 होगा। Accordingly I can take decision whether I have to print accepted or I have to print rejected. Is it clear? So certainly this algorithm, second one, is efficient. It is an efficient algorithm than the first one. Is it? अब इस efficient algorithm और इसके basis पे हम क्या करेंगे? The concept which we'll be using to make the FA corresponding to it. We can see that length of any string is either even or odd. Is it? अभी इस डिसीजन से हमने क्या होगा, या तो लेंथ इवन होगी या ऑड होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो दीज आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉसिबिलिटीज, और इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। किसी भी लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, या तो इवन होगी या ऑड होगी, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है क्या? इज देयर एनी थर्ड पॉसिबिलिटी? क्लास, No, sir.
देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी। ओके, सो हम क्या करेंगे, इस हर पॉसिबिलिटी के कॉरस्पॉन्डिंग एक स्टेट बनाएंगे। वी क्रिएट ए स्टेट corresponding to each such possibility and we call these as mutually exclusive states। तो मैंने क्या किया, मैंने दो स्टेट बनाई, एक स्टेट बनाई मैंने इवन, एक स्टेट मैंने बनाई इवन, और दूसरी स्टेट मैंने क्या बनाई, ऑड। नाम दे दी मैंने इन स्टेट्स को, इज इट? देन वी ट्राई टू फाइंड विच स्टेट इज द स्टार्ट स्टेट एंड विच स्टेट्स आर द फाइनल स्टेट्स। ओके, इन दोनों स्टेट्स में से कौन सी स्टेट स्टार्ट स्टेट होगी? स्टार्ट स्टेट के लिए गया शुरू में, जब आपने कुछ भी रीड नहीं किया, तो आपके स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? 0 है। 0। ओके, 0 लेंथ इवन पे आएगा या ऑड पे आएगा? ऑड पर इवन इवन पे आएगा ना। तो दिस इवन स्टेट विल बी माई स्टार्ट स्टेट, यानी स्टार्टिंग में जो पोजीशन थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेट बन रही, दैट स्टेट विल बी द स्टार्ट स्टेट। फाइनल स्टेट कौन सी होगी? जब मेरा स्ट्रिंग फिनिश कर रहा है। ऑड क्यों होगी? जब मेरा सर स्ट्रिंग फिनिश दो कर, फाइनल स्टेट होगी ना इसमें, इवन और ऑड। अगर 1 आया तो ऑड पे चला जाएगा, 0 नहीं, आया तो मुझे क्या चाहिए एफए में? मुझे इवन लेंथ के स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कराने हैं, इज इट? मुझे किस लेंथ के स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराने हैं? इवन लेंथ वाले। ऑड वाले तो रिजेक्ट करने हैं। तो यानी जब भी मेरे लेंथ ऑड है तो दैट शुड बी ए नॉन फाइनल स्टेट, और जब भी मेरी लेंथ इवन है दैट शुड बी ए फाइनल स्टेट। सो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इवन वाले को फाइनल स्टेट। सो दिस इवन इज स्टार्ट एज वेल एज दी फाइनल स्टेट। उसके बाद क्या करते हैं, तो मैंने स्टार्ट स्टेट और फाइनल स्टेट जो है मैंने फाइंड आउट कर ली, एंड देन वी विल ड्रॉ द ट्रांजिशंस बिटवीन दीज स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या है? अब देखिए, इवन स्टेट है मेरी। अब इवन स्टेट है, इस स्टेट में मैं क्या करूंगा, कोई लेटर रीड करूंगा ना, या तो ए या बी, चाहे कुछ भी रीड करूं, मेरी लेंथ क्या हो जाएगी? चाहे मैं ए रीड करूं चाहे मैं बी रीड करूं, मेरी लेंथ क्या हो जाएगी? अगर इवन स्टेट में हूं तो इसका मतलब लेंथ, अभी तक जो कुछ भी मैंने रीड किया उसकी लेंथ क्या थी? इवन थी। अब उसमें एक लेटर और बढ़ गया तो इवन से ऑड हो जाएगी ना? यस सर, ऑड हो जाएगी। ओके, सो जैसे ही मैं कोई भी लेटर रीड करूंगा, वेदर इट इज ए और बी, आई विल मूव टू दी स्टेट ऑड, क्योंकि अब मेरी लेंथ स्ट्रिंग की क्या हो गई? ऑड हो गई। अब अगर मैं इस ऑड वाली स्टेट पर हूं तो इसका मतलब अभी तक मैंने जितना कुछ भी रीड किया है उस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? ऑड है। अब मैं एक लेटर और रीड कर लेता हूं, चाहे ए या बी, तो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी? इवन हो जाएगी ऑड से। मैंने अभी तक ए बी ए, सपोज ये स्ट्रिंग रीड किया था, मेरी लेंथ ऑड थी तो मैं इस वाली स्टेट पर था, ऑड स्टेट पर, इज इट? अब मैंने एक लेटर और रीड किया, सपोज मेरा अगला लेटर भी ए है, सो दिस ए विल लीड मी टुवर्ड्स वेयर? इवन, क्योंकि अब मेरे स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो गई? इवन, इज इट? सो दिस विल बी द होल एफए corresponding to this language of all words over sigma which are having the even length। अब आप देखिए एप्सिलॉन होगा तो that will get accepted here, is it or not? Epsilon will get accepted। सिंगल ए, तो सिंगल ए will lead you here और यहाँ यहीं आपका फिनिश हो जाएगा, तो that single a will be rejected। yes सर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी सर का मैसेज आया ओके 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 ओके, सो इन 1 minute I am finishing, is it clear? सो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ओके, सिमिलरली सिंगल बी अगर है तो वो भी आपको रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए आपका है ए बी, कोई भी डबल लेंथ वाला वर्ड है, सो फर्स्ट ए विल लीड यू हियर ऑन द ऑड एंड द सेकंड लेटर दैट इज बी विल लीड यू टू द इवन। सो ए बी फिनिश होने पे आप कहाँ पे होंगे? इवन स्टेट पे होंगे। सो दैट्स व्हाई दिस ए बी विल गेट एक्सेप्टेड। इन द सिमिलर मैनर all words having the even length will get accepted and all the words which are having the odd length will be rejected। So this is a very important principle that is called the principle of mutually exclusive states। What we should do, we should try to see the mutually exclusive states। okay, mutually exclusive possibilities, और उन possibilities के corresponding हम एक state बनाएंगे and then we will find which state is the start state and which state is the final state, and then we will draw the transitions between those states as per the problem given, is it? So this is one very important tip which you can use for designing the FAs। okay, thank you all। so I am finishing my lecture here, you can leave the class, I will take the attendance now। You can leave the class, I have taken the attendance। Thank you, sir। थैंक यू सर। Thank you, sir.